The year was 1999. रैम्प पे लाइट्स ऑन हुई, डिज़ाइनर का स्वेट कुट्योर से भी ज़्यादा शाइन कर रहा था. एंड देन शी वॉक्ड इन. नॉट अ मॉडल, not someone from the world of design, but a Bollywood superstar. The crowd went ooh. Media flashes felt like lightning, and the designer, silent smile. Job done. The showstopper was actor Urmila Matondkar and the designer Manish Malhotra, जिन्हें widely credit किया जाता है for kick-starting the trend of popular faces and names as showstoppers, a concept rather unique to Indian fashion weeks. Cut to 2025. Lakme Fashion Week, Mumbai. Janhvi Kapoor steps onto the ramp for designer Rahul Mishra. Cinematic in every sense, but instead of applause, what followed was a storm. Social media की नज़र instead पड़ी उस मॉडल पे जो जानवी के ठीक पीछे चल रही थी और लोगों ने कहा that she totally stole the show. उनका नाम था तमन्ना कटोच and comments like who's this model? She just reminded Bollywood why this is called a fashion week, not a film festival. And the debate which has been raging for 2 decades reared its head again. फिल्म स्टार्स जो फैशन शो में शो स्टॉपर्स बन के आते हैं, ये ग्लैम का घमंड है या ब्रांड्स की डिमांड? लेट्स फेस इट, इंडिया में सिनेमा एक रिलीजन है और एक्टर्स ऑलमोस्ट डेमी गॉड्स. जब रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, जानवी कपूर या फिर बॉलीवुड के कोई भी स्टार रैंप पर आते हैं तो कपड़ों से ज़्यादा हमारी नज़रें और कैमराज उनको स्कैन करते हैं. फैशन की बात होती ज़रूर है बट फुटनोट्स में. और बस यही है इस फसाद की जड़. डिज़ाइनर महीनों स्पेंड करता है अपनी विजन को डिज़ाइन की फॉर्म में, एक कलेक्शन की फॉर्म में बनाने के लिए, और शायद उनके मैनेजर्स उतने ही महीने स्पेंड करते हैं ये डिसाइड करने और नेगोशिएट करने में कि सेलिब्रिटी शो स्टॉपर्स कौन होंगे. मॉडल्स हु आर ट्रेन्ड फॉर ईयर्स रिहर्स वॉक आफ्टर वॉक, बट द लाउडेस्ट cheers, वेल सबसे ज़्यादा तालियां रिजर्व होती है उस स्टार के लिए जो एंड में आता है और शायद शो से एकदम पहले अपनी फ्लाइट से पहुंचा हो और अक्सर तो रिहर्सल भी नहीं की हो. हमने आपको स्टार्टिंग में जो इंस्टेंस बताया था ऑफ उर्मिला वॉकिंग द रैम्प फॉर मनीष मल्होत्रा, दैट इज़ वेयर इट प्रीटी मच स्टार्टेड फ्रॉम. उससे पहले बीइंग अ सुपर मॉडल मेंट दैट यू वर द सुपरस्टार. नो डायलॉग्स, नो डांस नंबर्स. Who can forget Madhu Sapre, Meher Jaisia, Firoz Gujral, Sheetal Malhar, Ujjwala Raut, and even those men who later went on to become actors, Arjun Rampal, Dino Moria. हम बात कर रहे हैं 1990s की, जब डिज़ाइनर्स स्टार्स को हंट नहीं करते थे अपने कपड़ों को शोकेस करने के लिए. द सुपर मॉडल्स वर द स्टार्स. तब फैशन वीक्स का मतलब होता था कपड़े, क्राफ्ट और कॉन्फिडेंस, नॉट कैमरा जूमिंग इन टू कैच इफ एन एक्टर ट्रिप्ड ऑन द लहंगा. इसी बारे में बात करने के लिए राइट एंगल के साथ जुड़े रिनाउंड डिज़ाइनर नचिकेत बर्वे. उन्होंने वो 1990s का ज़माना कुछ याद किया. देखिए उनका क्या कहना था. Then I think the turning point really was in the 90s. Till then, say even internationally, Hollywood and fashion were a little disparate, like they were on different planets because there was not enough synergy. And it was Anna Wintour who, in American Vogue, changed that trend by putting actresses on the cover of the magazine and making them the faces of fashion. And I think once that happened, what one saw was, I think even brands quickly discovered that, you know, a famous name who had a lot of name recall in a general public was a good way to introduce their clothes to a larger audience and therefore drum up more publicity. I think what's been happening in India as well is, of course, we have had the lovely supers of India, whether it was Madhu Sapre, Meher Jaisia, Jaisia, Sheetal Malar, so many of them. And that apart, I feel like what also kind of happened in India is in the last 10-15 years, we've seen celebrities take center stage because of the amount of eyeballs that they grab. इन सुपर मॉडल्स के लिए इतनी ज़्यादा एड्यूलेशन और रिस्पेक्ट होती थी दैट इवन ब्रांड्स वांटेड टू फीचर देम इन एडवर्टिजमेंट्स. आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को याद होगा एक टफ शूज़ का ऐड आया था, बहुत ही इनफेमस हो गया था, जिसमें मधु सप्रे और उनके उस वक्त के बॉयफ्रेंड मिलिंद सुमन दे पोज्ड नेकेड अलोंग विद अ स्नेक वेयरिंग ओनली टफ शूज़. वेल उनके ऊपर तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और केसेस की बारिश हो गई थी, बट द ब्रांड सोल्ड आउट ऑल इट्स शूज़. एक डिज़ाइनर है शाहब दुराजी, जिन्होंने एक ज़माने में भी ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टू स्टार्ट द ट्रेंड ऑफ सेलिब्रिटी शो स्टॉपर्स. तो शाहब ने 2024 में किए हुए अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में देखिए उस वक्त के इंसिडेंट को याद किया, ऐश्वर्या वाले शो को,
और उसके बारे में कहा, and I quote, "What I did not realize is that this would spark the trend of showstoppers, which I would later look back on in dismay, as it created a grey space in my journey of creative integrity, and in hindsight, I feel responsible for starting the trend, being the first one to have a Bollywood superstar grace the catwalk. Almost 25 years later, I reinforce my stand that Bollywood showstoppers must end." Unquote. ऐसा क्या है कि प्रोफेशनल मॉडल्स को ओवरशैडो करने लग गए फिल्म स्टार्स की तादाद? टू स्टार्ट विद पोस्ट लिबरलाइजेशन, जब इंडिया बूम कर रहा था इन द ईयर 2000 एंड लेटर, ब्रांड्स बोल्ड होते जा रहे थे, मीडिया भी बहुत रैपिडली चेंज हो रहा था। ऐसे में लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई कपड़े या कोई एक्सेसरी एक सेलिब्रिटी पहन लेता है तो एक गारंटी हो जाती है आई बॉल्स की, उनके लिए भी और ब्रांड्स के लिए भी। न्यूज़पेपर्स के पेज 3, टीवी पर हर जगह आपको कलेक्शन और ब्रांड्स दिखाए जाते थे, और उन सब में अगर कोई फेमस एक्ट्रेस ने उस ब्रांड को पहना हुआ है तो वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता था। और फिर ये हुआ कि जैसे जैसे आइकॉनिक रैम्प वॉक मोमेंट्स बढ़ते गए, सेलिब्रिटीज़ आते गए, कंट्रोवर्सीज़ की भी बारिश होने लगी। 2009 में मनीष मल्होत्रा ने वॉक करवाया शाहरुख खान को उनके फेमस स्लिंग में। उस वक्त शाहरुख के हाथ में सर्जरी हुई थी तो उनके हाथ स्लिंग में था। उसी साल लैक्मे फैशन वीक में हुआ कुछ ऐसा जो काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया। एक्टर अक्षय कुमार, he was working for a jeans brand. His wife Twinkle Khanna was sitting in the front row. He asked his wife to unbutton his jeans because Levi's was launching a new line called Unbutton. It led to a lot of legal trouble for the couple. इनफैक्ट एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ जिसमें फैशन डिज़ाइनर रोहित बाल और कुछ फिल्म एक्टर्स जो उनके काफ़ी करीबी दोस्त थे, उनके बीच में काफ़ी ज़ोर से झड़प हो गई ऑन द इशू ऑफ वॉकिंग द रैम्प। ये हुआ था 2009 में, जब रोहित बाल के फ्रेंड्स थे अर्जुन रामपाल और दीनो मोरिया, जो ओरिजिनली वॉक करने वाले थे उनके शो में। दे वर सडनली एट द लास्ट मिनट रिप्लेस्ड बाय रणबीर कपूर एंड कटरीना कैफ राइट बिफोर द शो। अब सोच लीजिए कैसा धमाल हुआ होगा। दीनो और अर्जुन ने रणबीर और कटरीना के साथ वॉक करने से मना कर दिया। उस वक्त अर्जुन रामपाल ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात की थी और उन्होंने कहा था, आई कोट, "I was supposed to be the showstopper for Gudda. Gudda is Rohit Bal's nickname. But when I reached Delhi, he told me that Ranbir and Katrina would be the showstoppers because of some monetary tie-ups. Gudda said that things had gone out of his hands and he himself asked me to not walk the ramp because it didn't make sense if I was not the showstopper." अब सवाल ये है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से फिल्म स्टार्स इतने ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं कुट्योर वीक में, फैशन वीक्स में? इसके जवाब है 3 F's में: फ्रेंडशिप, फीस एंड फॉलोअरशिप। तो पहला है फ्रेंडशिप। मैं आपको बता दूं कि जैसे फ्रेंडशिप के चलते अगर किसी फैशन डिज़ाइनर के कुछ खास फ्रेंड्स हैं बॉलीवुड में, तो वो अक्सर या तो उनके लिए रैम्प वॉक करते हैं या उनके फ्रंट रो में देखे जाते हैं। जैसे कि मनीष मल्होत्रा, जिनके तकरीबन सारी फिल्म इंडस्ट्री उनके फ्रेंड्स हैं, राइट फ्रॉम उर्मिला मातोंडकर, शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर, करिश्मा कपूर से लेके आज की जो यंगर एक्टर्स हैं जैसे जानवी कपूर, खुशी कपूर, इन सब ने मनीष मल्होत्रा के लिए वॉक किया है बिकॉज देयर इज़ अ सर्टन रिलेशनशिप that the designer has with these actors. मनीष मल्होत्रा एक शो करते हैं मिजवा वेलफेयर सोसाइटी के लिए। इट्स अ नॉन प्रॉफिट शो। हर साल उनके पास कोई बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी शो स्टॉपर्स आते हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, अनुष्का शर्मा हो या फिर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। इसी तरह फ्रेंडशिप का एक और एग्जाम्पल देखने को मिला FTCI के एक शो में, जहाँ पे लेट रोहित बाल को ट्रिब्यूट दिया गया। हमें पता चला कि ओरिजिनली कोई और एक्टर शो स्टॉपर बनने वाले थे, पर उनका लास्ट मिनट पे प्लान कैंसिल हो गया। सुबह में 11:30 बजे कॉल गया सोनम कपूर को टू कम एंड वॉक द शो। दिस वॉज प्रीटी लास्ट मोमेंट बिकॉज शो उसी दिन था आफ्टरनून में, बट इन द इवनिंग सोनम वॉज ऑन द रैम्प ओनली बिकॉज रोहित और उनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था। तो अब हम आते हैं दूसरे F पे। दूसरा F है फी। द राइट एंगल की टीम ने पता लगाया कुछ एक्टर्स के रेट कार्ड्स रैम्प वॉक करने के लिए एट फैशन शोज, जहां आलिया भट्ट, शाहिद कपूर, विकी कौशल वगैरह चार्ज करते हैं 70 लाख रुपए या उससे भी शायद ज़्यादा। आदित्य कपूर वगैरह जो है वो 20 लाख से 25 लाख से ऊपर चार्ज करते हैं टू वॉक द रैम्प फॉर अ डिज़ाइनर। और शाहरुख, सलमान खान, अक्षय कुमार की तो बात ही मत कीजिए बिकॉज उन लोग करोड़ों में चार्ज करते हैं। मोस्टली लोग अफोर्ड नहीं कर पाते टू हैव देम वॉक द रैम्प, सो इसलिए आपको बहुत A+ लिस्टर एक्टर्स ज़्यादा दिखेंगे नहीं। ये सारी नेगोशिएशंस की जाती हैं एक्टर्स के बिजनेस मैनेजर्स से मच इन एडवांस। ऑफकोर्स इट गोज़ विदाउट सेइंग कि बिजनेस क्लास की टिकट्स और उनका जो पूरा ऑन्टोराज होता है एक्टर्स का, उन सब के ट्रैवल का खर्चा, एक्टर के कई बार अपने हेयर मेकअप पर्सन आते हैं,
उन लोगों का खर्चा। वैसे तो फैशन डिज़ाइनर्स के केस में स्टाइलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कई बार एक्टर्स इंसिस्ट करते हैं अपने अपने खुद के स्टाइलिस्ट लाने का, उनका भी खर्चा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं एक्टर्स की डिमांड लिस्ट में, जो एक तरीके से फ़ीस का पार्ट ही बन जाती है। हर एक्टर को ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट चाहिए होता है, जो शो स्टॉपर्स होते हैं, और कई दफ़ा मल्टीपल एक्टर्स होते हैं और स्वीट होता है एक, तो थोड़ी दिक्कत आती है। एक पर्टिकुलर टाइप की लग्जरी गाड़ी की भी एक्टर्स डिमांड करते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द फैशन शो, विच दे नीड समटाइम्स इवन आफ्टर द फैशन शो इज़ डन टू जनरली डू देयर ओन विजिट्स, प्राइवेट विजिट्स एट्सेट्रा। अब हम आते हैं तीसरे एफ पे, जो कि है फॉलोअरशिप, यानी कि सोशल मीडिया फॉलोइंग। ये आज भी डिटर्मिन करता है कि कौन सा सेलिब्रिटी को कितना पैसा दिया जाएगा टू वॉक द रैम्प। और इसमें ये भी होता है कि कई दफ़ा वो एक्टर फिल्मों में चल रहा हो या नहीं, उनकी सोशल मीडिया फॉलोअरशिप इतनी ज़्यादा होती है कि वो काफ़ी डिमांड में होते हैं टू बी शो स्टॉपर्स। ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनकी पिछले कुछ सालों से फिल्में अच्छी नहीं चली हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया पे 35-40 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सो दोज पीपल आर रियली अ लॉट इन डिमांड। ऐसे में एक एग्जाम्पल है दिशा पाटनी का। आई मीन एज एन एक्टर उनकी कुछ आखिरी की कुछ फिल्में चली नहीं है ज़्यादा, लेकिन ऑन द रैम शी इज़ जस्ट टू मच इन डिमांड। इनफैक्ट वो सबसे ज़्यादा चार्ज करने वाले एक्ट्रेसेस में से हैं, बिकॉज हर इंस्टाग्राम फॉलोअरशिप इज़ मोर देन 61 मिलियन। और दिशा इसके चलते जो फैंस में उनकी इमेज है उसको भी बहुत ध्यान में रखती हैं। जैसे एक शो हुआ था कुछ साल पहले, जहाँ पर दिल्ली में हुआ था ये, जहाँ पर उन्हें एक लूज़ टी शर्ट पहननी थी एज पार्ट ऑफ हर सेलिब्रिटी शो स्टॉपर वॉक, लेकिन सुनने में ऐसा आया कि लास्ट मिनट पे दिशा ने मना कर दिया बिकॉज शी felt that she had a little bit of a sexy image in front of her followers and therefore she did not want to wear that loose t-shirt. तो बिल्कुल लास्ट में उनके आउटफिट में चेंजेस किए गए। तो ऐसी भी कई बार हालात हो जाते हैं। फिर सेलिब्रिटी शो स्टॉपर्स के चलते एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है जब स्टार्स रिहर्सल नहीं करते और फिर उनकी वॉक बहुत ऑड लगती है, और ये काफ़ी पॉइंट आउट हो जाता है मीडिया में। जैसे सारा अली खान ने इंडिया कुट्योर वीक 2023 में एक वॉक किया था शेन फाल्गुनी के शो में, जिसे कॉल आउट किया गया फॉर अ वेरी वेरी ऑड वॉक। कुछ सेलिब्रिटीज़ ये भूल जाते हैं कि वो रैम्प पे वॉक कर रहे हैं और रैम्प पे वॉक करने के कुछ डेकोरम होते हैं, वो अपनी शादी में रिश्तेदारों से मिलने नहीं आए हैं। जैसे अभी हाल ही में नितांशी गोयल डिड दिस एट अ शो इन अप्रैल, जहाँ पे उन्होंने रैम्प वॉक करते करते सडनली बीच में रुक के सुष्मिता सेन को हक किया, फिर हेमा मालिनी जी के पैर छूने शुरू किए, या फिर अदा शर्मा शी स्टार्टेड डूइंग सम सोर्ड के साथ कुछ मार्शल आर्ट्स एट द बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअल फैशन वीक में जिस तरह से मॉडल्स को चलना चाहिए, ये सेलिब्रिटीज़ उसमें कुछ अपना ही अलग फ्लेवर ले आए हैं। At an event which is meant to be all about the designer's vision, these antics are rather distracting. लेकिन ये सब and more सहना पड़ेगा for the value that these celebrities bring to the fashion week. A designer, while talking to the Voice of Fashion without wanting to be named, had said that the new age paparazzi who enjoy a massive fan following on Instagram as such do not even tag the designers for whom the particular showstopper is walking. They only mention the showstopper. मतलब बेसिकली मीडिया जो है उसको सिर्फ शोस्टॉपर दिखाने से मतलब है, उस डिज़ाइनर के बारे में, उन कपड़ों के बारे में, उन कलेक्शन के बारे में अक्सर मीडिया एम्फसाइज ही नहीं करता और सारा का सारा फोकस शोस्टॉपर पे चला जाता है। लेट्स रिलाई ऑन द वर्ड्स कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। रोहित बाल, लेट रोहित बाल ने एक पैनल डिस्कशन में बोला था वंस, एंड आई कोट, My advice to young designers is to try and avoid the showstoppers syndrome. It is lethal and will kill your craft. It takes away from the hard work of the designer. That 15-second long walk of a showstopper is all that is remembered about that show. दिस इज़ क्वाइट ट्रू एक्चुअली, और ये रोहित बाल ने अच्छी एडवाइस दी थी टू द बडिंग डिज़ाइनर्स। लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि शो स्टॉपर्स सबको लेने पड़ते हैं। इस पूरे टॉपिक को एक अच्छे से पर्सपेक्टिव में देने के लिए द राइट एंगल गॉट द टॉप वॉइस इन इंडियन फैशन राइट नाउ, द बिगेस्ट अथॉरिटी दैट देयर इज़, जो इस इंडस्ट्री का इन एंड आउट सब कुछ समझते हैं, वो है FTCI चेयरमैन सुनील सेठी। सी वॉट ही टोल्ड अस अबाउट दिस होल कल्चर ऑफ सेलिब्रिटी शो स्टॉपर्स। Since this program is about the right angle, I want to tell you exactly how I feel and my take on it. The fact is that from when the transition took place, from the models being the supermodels and the showstopper, took some time. And the creation of the designer was what was the most sought after. I remember that all the designers were looked only at the showstopper as their muses, not as a film star. Somewhere down the line,
everything changed. When I do India Couture Week for the last 2008, even though I feel that the designer's creations are what it is as a purist, I feel that the Bollywood celebrity or the showstopper who is so famous and popular, I think they do add to the designer. I remember one thing, that when a Deepika Padukone, when she wore a blue lehenga for a finale of mine, I remember the designer telling me that 3 years in a row we only get orders for that. So the fact is that if you are flavor of the season, if you are doing the best movies or you're talked about, and my fashion designer takes you as a celebrity, a lot of the times the fashion designer is really smart. They want to see that the fact that the celebrity showstopper, they have to match the image of the brand. When that is done, I have less of a problem. When they are muses and friends and people have used them year after year, it's not a problem for me. Even today, if there is a sponsor or somebody who's willing to pay and it adds and makes the show grander and the designer is more than happy to do it, who am I to stop that? Sone pe suhaga is what I say all the time. Yes, we agree, Mr. Sethi. If stars add value, तो सोने पे सुहागा तो वाकई होता है. However, the next time you clap for the showstoppers, don't forget to appreciate the models who quietly steal the show. याद रखें, रैंप पे चलना शायद सब सीख सकते हैं, पर उसे यादगार बनाना सिर्फ कुछ को ही आता है. And often those few aren't the ones trending, they're the ones training. The Right Angle with Sonal Kalra.